Good morning, everyone, and welcome to my presentation. Myself, Sakshi Devi from Physical Science with Chemistry, Kirodimal College. First of all, let me thank you all to be here today. As you can see on the screen, our topic is to determine the enthalpy of neutralization. First of all, I would like to give you an overview of the definition and terms related to the enthalpy of neutralization. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, हम इन जनरल समझेंगे. Enthalpy of neutralization is an enthalpy change when one mole of H positive ions of an acid is completely neutralized by 1 mole of OH negative ions of a base to form 1 mole of water. Enthalpy of neutralization is always constant for a strong acid and strong base because all the strong acids and strong base are completely ionized in dilute solution. Enthalpy changes in neutralization is always negative because when an acid and an alkali react, heat is given out. हमें पता है किसी भी रिएक्शन में जब हीट इवोल्व होती है, मतलब जब भी हीट रिएक्शन बाहर निकलती है तो फिर उसमें हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं. When a reaction is carried out under standard conditions at the temperature at 298 Kelvin and 1 atm of pressure and 1 mole of water is formed, it is called the standard enthalpy of neutralization. Standard enthalpy of neutralization होता क्या है? जब एक रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और कंडीशंस क्या क्या होंगी, हमें टेम्परेचर 298 केल्विन रखना है, प्रेशर 1 atm रखना है, और इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मोल ऑफ वाटर. इस पूरी रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. Now, the question that strikes our mind is that how we can determine the enthalpy of neutralization. Obviously, through an experiment. See, the aim of the experiment is to determine the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base. So, what is the actual experiment? See, when you get any strong acid like HCl and any strong base like NaOH, and when you mix them, it will give you a salt and water. So during this reaction, the heat is evolved. So if you must know that in any experiment, in any reaction, when heat is evolved, that reaction is known as exothermic reaction. So, by performing this experiment, we have to calculate how much is the enthalpy change, how much heat is evolved during this reaction. To perform this reaction, we require the following apparatus: white polythene bottle, rubber cork, thermometer, stirrer filled with a cork, measuring cylinder, 0.5 mole HCl, 0.5 mole sodium hydroxide. This is how we have to arrange the apparatus to perform this experiment. Now see the procedure of this experiment. What we have to do. First, we have to calculate the water equivalent of the calorimeter. Now place 50 ml of 0.5 molar HCl acid solution in it. Record the temperature of that solution. Now take another separate vessel and place 50 ml of 0.5 molar sodium hydroxide solution in it. Note down the initial temperature of sodium hydroxide taken. Wait till both the solution attain the same temperature. Now transfer 50 ml of sodium hydroxide solution into the hydrochloric acid solution quickly. Fit the cork immediately, which has a thermometer and a stirrer in the mouth. Stir well the solution and note down the temperature and after small intervals of time. Keep noting down the temperature till the temperature becomes constant. Record the highest temperature. Now this is the observation table. इस ऑब्जर्वेशन टेबल को समझने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट था क्या. सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे जिसका माउथ नैरो ही होगा. उसके अंदर हम 0.5 मोलर HCl डालेंगे. कितना, 50 ml. 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl हम उसके अंदर डाल देंगे. अच्छे से स्टिर करके हम उसके अंदर थर्मोमीटर डाल देंगे और फिर उसका टेम्परेचर देखेंगे आफ्टर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम. वो टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे जब वो सॉल्यूशन हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन कर लेता है, और वो नोट डाउन कर लेंगे. और ये टेम्परेचर हमारा होगा T1.
T1 हो गया हमारा टेम्परेचर होगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर HCl, इसको हम T1 नाम दे देंगे। दूसरा हम सिमिलरली एक अलग प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उसके अंदर 50 ml ऑफ 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे। सिमिलरली हम उसके अंदर थर्मोमीटर डालेंगे। फिर हम स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे और वो टेम्परेचर देखेंगे जब वो सॉल्यूशन हाईएस्ट टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, वो हमें देखना है। और वो टेम्परेचर हमारा होगा T2। T2 क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0.5 मोलर HCl NaOH। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास NaOH का सोल्यूशन था उसको हम जल्दी से HCl के अंदर डाल देंगे और ऊपर से कोट फिट कर देंगे। फिर हम उसके अंदर स्टीरर डालेंगे और थर्मोमीटर डालेंगे। उसके स्टीरर से अच्छे से मिक्स करके सॉल्यूशन को, उसके बाद उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे। उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर वो होगा हमारे पास T4, मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और T3 हम किसका नाम दे देंगे? T3 हम किसको रखेंगे? जो उन दोनों का एवरेज होगा, एक्चुअल नहीं होगा। एक्चुअल तो हमारा T4 है, जो हम T3 क्या है? उन दोनों का जो हम एवरेज निकाल लेंगे, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा T3। और हम इससे डेल्टा T कैसे निकाल सकते हैं? T4 माइनस T3 से हम डेल्टा T निकाल सकते हैं। और हमें पता ही है S क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो होता है 4.184 जूल। तो इस तरीके से हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार हो जाएगी। हमें वैल्यूज़ पुट करते जाना है और ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास आती है कैलकुलेशन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 ml 0.5 मोलर HCl बाय 50 ml 0.5 मोलर NaOH। अब हमें इसमें एंथैल्पी चेंज निकालना है कि एंथैल्पी कितनी चेंज हुई है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl एंड 15 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। अब हम ये एंथैल्पी चेंज निकालें कैसे? उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। M हमारे पास होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन, S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा T हो जो हमने निकाला था पीछे T4 माइनस T3। तो हमें इसकी सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है। मास कितना था हमारा 100, S कितना था 4.184 और डेल्टा T हमारे कितना निकाला था 3.4। तो इसका आंसर आ गया 1422.56। अब हमें पता है कि 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl में 0.5 मोल ऑफ HCl था। लेकिन अगर हमें वैल्यू कम करनी हो, मतलब 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl निकालना हो, तो उसमें कितना होगा? 0.25 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट होगा। लेकिन जो हमने ऊपर एंथैल्पी चेंज निकाला था वो तो हमने 1000 का ही निकाला था, तो वो क्या आया था 1422.46 आया था। लेकिन उसके अंदर कितना मोल ऑफ HCl था? 0.025। तो हमें इसमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा H इक्वल्स टू 1.1422.56 डिवाइडेड बाई 0.025। इसमें हमें आंसर मिल जाता है 56902.6 जूल पर मोल। अब हम इसमें नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है हीट इसमें एवोल्व हो रही है, और जब भी हीट एवोल्व होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और उसमें हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। Now this is the result of our experiment. The enthalpy of neutralization of strong acid HCl and strong base NaOH is -56.90 किलोजूल पर मोल। इसमें सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग टेम्परेचर नोट डाउन करेगा, हर एक का सॉल्यूशन का टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। So finally this brings me to the end of my presentation. Thank you.